Hello students, this is Arpit Gupta, your business study faculty from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we are going to start our sixth chapter, Social Responsibility of Business and Business Ethics. So till now we have understood what is the basic meaning of the social responsibility, what is the overall requirement of the social responsibility. So in this particular video we will discuss the particular topics, that is the status of the corporate social responsibility in India, that how the social responsibility is overall working in India, responsibility towards different interest groups, that is to the shareholders, to the consumers, to the suppliers, etc. Business and environment protection, how it is the responsibility of the business to protect the environment. Causes of pollution, that we have already understood and studied various times, that is the noise pollution, the air pollution, and the need for the pollution control. Role of the business environmental protection and business ethics, that is we are going to study only the meaning of business ethics, the rest of the part has been deleted. So let's start with the social responsibility. As we know, when the government introduced any rules, any regulations, it is prescribed in certain sections. Sections are basically the rules which are being given by the parliament, by the government, and we categorize them into various types of categories. So section 135 of Companies Act, as we know, all the corporate sectors are regulated by the Companies Act 2013. So the section 135 of the Companies Act 2013 describes the social responsibility. So we have categorized into three parts, that is if the company is having the net worth of up to rupees 500 crores or the turnover of 1000 crores and the net profit of 5 crores. It means if any corporate sector or any company fulfills any of the criteria, that is the net worth, the turnover, the net profit, then it is mandatory for the company to contribute at least 2% of their average net profit. Now what is the average net profit? The average net profit is calculated on the basis of last 3 years profit. We calculate 3 years last profit and then calculate the average of that profit. तो उससे क्या होगा, जो अमाउंट निकल कर आया वही अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब एक चीज हमारे सामने आती है, क्या सिर्फ 2% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है. ये जो चीज बताई गई है, ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गवर्नमेंट ने कि आपको मिनिमम 2% कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. लेकिन एक बार आपने सेक्शन 135 के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया तो हर बार आपको अब कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटी भी है. तो सेक्शन 135 ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स ये तीनों कैटेगरीज फुलफिल करती हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब कंट्रीब्यूशन की बात हुई तो कंट्रीब्यूशन होगा कैसे, वो भी देख लेते हैं. Government has prescribed the board for doing the contribution under social responsibility. अब उस बोर्ड का काम क्या होगा कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जो CSR की पॉलिसी डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कंट्रीब्यूट करना है, किन किन कंपनीज के लिए हमें मैंडेटरीली उनसे कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो चेक करना है. तो वो पॉलिसी कौन बनाएगा, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बोर्ड बनाएगा. अब कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर करवाना है वो भी डिसाइड करना होगा कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर हमें करना है CSR के अंदर. उसके बाद जो भी पॉलिसी कंपनी CSR के लिए बना रही है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ये सारा काम किसका रहेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बोर्ड का रहने वाला है. नाउ वी टॉक अबाउट द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. The first one is towards the owners, towards the workers, government, consumers and community. As we see that these are the groups of the people who are directly or indirectly related with the organizations. Let us understand. First is the responsibility towards the owner. अब देखिए, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं जिनको हम बेसिकली शेयर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स होते कौन है, वही सारे लोग जो कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं. कैसे, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी अपने टाइम टू टाइम इक्विटी शेयर्स इशू करती है मार्केट में. अब इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं, बेसिकली इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओनरशिप.
उन इक्विटी शेयर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब उतना अमाउंट का राइट आपका कंपनी में जनरेट हो चुका है। अब उस कंपनी में डिसीजंस आप ले सकते हैं। कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी तो पहले आपसे कंसल्ट करेगी, अगर आप कंसेंट देंगे तो ही वो कंट्रीब्यूशन या फिर वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो कंपनी अल्टीमेटली उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जब कंपनी में इतना राइट हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो एज अ कंपनी हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु प्रोवाइड necessary capital and in turns bear the associated risk. As we know the shareholders are having the ultimate risk of the business. देखिए होगा क्या, अगर मान के चलिए मेरा बिजनेस क्लोज हो गया और मेरे को लॉस हो गया तो वो अल्टीमेटली लॉस किसको बियर करना है, कंपनी के ओनर्स को। और ओनर्स कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केसेस में कौन रिलेट कर सकते, किसको रिलेट किया जा सकता है, शेयर होल्डर्स को रिलेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होल्डर्स में। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो भी उस केस में लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को। सो what is the responsibility towards the owners? Now owners, or we can say the shareholders, to ensure the safety of the investment, that is it is my duty to preserve, to conserve or to protect the investment which has been done by the shareholders. जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको फर्स्टली मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, अगर मान के चलिए मैंने उस अमाउंट को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया और लॉस हो गया अल्टीमेटली, देन होगा क्या कि जो भी रिस्क है उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, मैं होऊंगा। मुझे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि ये जो लॉस हुआ इसका क्या रीजंस रहे थे। टू गिव फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड ऑन द इंटरेस्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. Now these dividends are to be distributed to the shareholders and shareholders will ultimately keep these dividend as a reward of their investment. जो भी पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया, देखिए क्या होता है, मेरे पास फंड्स हैं एज अ शेयर होल्डर्स, अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और कंपनी मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं देगी तो इससे बेटर है मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करूं जहां पे मेरे को और रिटर्न मिले। लेकिन मान के चलिए कि कंपनी मेरे को टाइम टू टाइम रिटर्न दे रही है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। To provide reasonable appreciation of capital through best possible utilization of resources. Now, as a company, it is my duty to invest the funds on the right places. ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहां से रिटर्न ज़्यादा मिल सके। सपोज मैं अपना फंड्स जो है वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ फंड्स उसमें से कहाँ डिपॉजिट करवा देता हूँ, बैंक में। अब बैंक में मैंने जो फंड डिपॉजिट कराया उसका मेरे को जो रिटर्न मिलने वाला है वो तो फिक्स है, जो बैंक ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दी। लेकिन अगर कंपनी मेरे को उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, सपोज बैंक मेरे को रिटर्न दे रही है 3.5% और मेरे को कंपनी से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, मेरे को 5% 6% कंपनी रिटर्न दे रही है, तो बेटर है मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो कंपनी के पास ऐसे वायबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे क्या हो सके, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करवा पाए। Now, to give regular, accurate and adequate information on the financial position and future plans of the company. So, अब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं। So, it is the duty of the company to provide all the financial reports to the shareholders. Means the balance sheet, the profit and loss account is to be shared with the shareholders on the regular basis. अब इसका फायदा क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी पता होगा कि हाँ कंपनी में ओवरऑल चल क्या रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट प्रेजेंट। क्योंकि अगर उनको लगता है कि नहीं जो प्रोजेक्ट कंपनी लेकर आने वाली है या जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है उससे फ्यूचर में जाके हमें लॉस हो सकता है, तो शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग बुलाकर उस प्रोजेक्ट को रोक भी सकते हैं। तो एज अ ओनर मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में ओवरऑल चल क्या रहा है, और अगर मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कंपनी के लिए सही डिसीजन ले पाऊंगा। To provide reasonable opportunities for participation in, of the shareholders in the decision making. So आपको पता होगा कि as per the Companies Act 2013, it is mandatory to conduct the shareholders meeting and the board meeting. The shareholders meetings are known as general meeting. In general meetings, the shareholders decides or take the decisions on the behalf of the company. अब होगा क्या कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं अगर वो मैंडेटरी है तो जब तक शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 3/4
of the total shareholders, or we can say 75% of the shareholders should give their consent, और उनकी कंसेंट आने के बाद ही क्या होता है, डिसीजन पास किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज. Now employees are the people who actually executes the work, who actually works for my objectives. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे लिए ज़्यादा बनती है. क्या कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक फैमिलियर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम सैलरीज एंड वेजेस मिलनी चाहिए. तो एम्प्लॉयज़ आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. तो क्या है, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है, आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सारा काम मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करने की कोशिश करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन एम्प्लॉयज़ की वजह से ही क्या होगा, मैं अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाऊँगा. Hence, the well-being of the employee is material advantage as well as moral obligation of the business. So, it is the duty, it is the obligation of the business to टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़. मीन्स उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिजनेस की. Responsibility towards the employees. The business has the following responsibility: to provide fair and regular wages and salaries. Means उनको टाइम टू टाइम सैलरीज मिलनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम वेजेस मिलनी चाहिए. To provide good working conditions along with the welfare facilities. Now, if we talk about the present scenario, there must be a proper sanitization, there must be a proper measures which should be taken by the organization so that the employees can work freely in the organization. To offer opportunities for education and self-development. Now, it is the duty of an organization to provide timely training to the employees. जिससे होगा क्या कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. As consumers plays very important role in the organization because the ultimate product which I have manufactured or I have prepared is to be sold to the ultimate consumers. Now अगर consumers ही मेरी सर्विस से satisfied नहीं होंगे तो मेरे प्रोडक्ट को परचेज ही कौन करेगा. तो ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि मैं उनके राइट्स को क्या करूँ, प्रोटेक्ट करूँ. अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी उनकी क्वेरीज है तो उनको सॉल्व करूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको रिप्लेस करके दूं. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी. तो बिजनेस हैज फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, दैट इज टू सप्लाई गुड्स एट गुड क्वालिटी एंड सर्विसेज एट रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस. दैट मीन्स जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे रहा हूँ, पहली चीज़ उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज ना करूँ. गुड्स में कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए. गुड की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए. टू सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस एंड टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स. मीन्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर द गुड्स मस्ट बी अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेगुलर बेसिस. मीन्स अब जब डिमांड आ रही है गुड्स की तो वो कंज्यूमर को सेल करने के लिए मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए. मीन्स क्या हुआ, मैंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, कंज्यूमर उसकी डिमांड भी करने लगे, लेकिन मेरे पास वो कंज्यूमर को सेल करने के लिए है ही नहीं, तो फिर उसका भी कोई पर्पस नहीं होगा. तो मेरे पास इतना सफिशिएंट स्टॉक ऑलरेडी होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो मैं उनको क्या कर पाऊँ, सेल कर पाऊँ. Responsibility towards the consumers to avoid malpractices such as adequate hoardings, black marketing, dishonest advertisements. Now, as we see in the on our television that various kinds of advertising are running on the regular basis. अब होगा क्या कि कई बार फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एडवर्टीजमेंट टीवी पे दिखाया जाता है और उनके कुछ फीचर्स आपको बताए जाते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा उनसे मिलने वाला है. लेकिन अल्टीमेटली क्या उन सारे प्रोडक्ट्स में सारी चीज़ें होती हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है, उनको रोकना है, उनको कंज्यूमर्स तक नहीं जाने देना है, ताकि क्या होगा कि कंज्यूमर के पास एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, जो एक्चुअल उससे बेनिफिट होने वाला है वो पता लग सके. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड एन फेयर एडवर्टीजमेंट टू द कंज्यूमर्स. To avoid malpractices such as adulteration, that means there must be no mixture in the goods. कोई भी ऐसा गुड्स नहीं होना चाहिए जिसमें हमने कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए या फिर ऐसा कुछ कर दिया जिससे उनकी ओवरऑल क्वालिटी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई. To handle customer complaints and grievances satisfactorily, that means if consumer is facing any kind of doubts, any kind of queries or problems, it is the duty of the organization to resolve these problems.
Now responsibility towards the government. As the government is playing a very major role in the organization, government provides license to the organization, government provides the permissions to the organization for conducting their business. तो जब सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मिल रही हैं तो उनकी डिमांड्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा. तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जो भी गवर्नमेंट रूल्स लॉज हमारे लिए बना रही है उन लॉ को हमें क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा. तो to abide by the law of land and pay the taxes promptly and regularly. So it is a duty of the organization to pay their tax on time, to follow the rules and regulations as prescribed by the government for my organization. जैसे मेरे को पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसे मेरे को और सेफ्टी मेजर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मेरे को सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ रखनी पड़ेंगी. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे को एम्प्लॉयज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी. नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेट्स हैव अ लुक. टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड एंड पे द टैक्सेस, to actively participate in solving the nation's problems like unemployment, pollution, etc. As we have discussed, we are talking about the social responsibility. So as a business organization, it is my responsibility to see the underdeveloped sections of the society and to contribute towards these sections. अब क्या होगा कि ऐसे लोग जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी मेरी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं ताकि वो भी क्या कर सकें, अपने आप को डेवलप कर पाए. टू अवॉइड मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. नाउ व्हाट हैपन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन? If we see, there are some products which are available in a very short quantity, that is precious metals such as gold, silver. अब होगा क्या कि जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम है तो उसकी जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बात है उसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो अब मेरे को क्या करना है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है तो कंज्यूमर अगर उसकी डिमांड कर रहा है मेरे से तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सप्लाई करना पड़ेगा और रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा. Now responsibility towards the community. Community means the society. Business should work for the economic and social well-being of the community. So it is my duty to work for the welfare of my society. That is, I should check the pollution. I should do not degrade the environment. I should protect the environment. It is my responsibility as a business organization. So what are the following responsibility of the business organization as a towards the community? That is, to act as a good citizen and act as per the accepted values of the society. Means मैं अपने सेल्फ मोटिव के लिए काम ना करूं, मैं सेल्फिश मोटिव के लिए काम ना करूं, मेरे को सबके बारे में सोच के चलना पड़ेगा. क्योंकि अगर सोसाइटी को कोई लॉस हो रहा है तो लॉन्ग रन के लिए मेरे लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. To contribute towards conservation of natural resources by optimally utilizing them means जो the resources which are available with us, that is as a business organization should be used very efficiently. Means अगर कोई भी ऐसे resources है जिसका बहुत सारे uses हो सकते हैं जिनको मैं दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ तो मेरे को उनका क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, फ्यूचर में हमारे पास होंगी नहीं होंगी उसका भी कोई हम आज पता नहीं लगा सकते. तो जितना एफिशिएंटली हम उनको यूज़ कर सकते हैं उतना एफिशिएंटली हमें यूज़ करना पड़ेगा. To and to protect the environment. As we know, it is our duty to protect the environment and to make the environment very pure and safe. Now, as a business, what is the business and environmental protection? That is, protection of the environment is a serious issues that confronts business manager and decision makers. As we know, there are various issues which are going. Some are natural and some are the man-made. Now, as a business organization, I have to look on, I have to check these measures and to protect the environment. Pollution changes the physical, chemical and biological characteristics of air, land and water. Now, what happens as we talk about the leather industries and the big chemical industries, they disposes their waste in the water, on the land, which makes them unfit for the society. दैट मीन्स क्या होगा कि अगर मान के चले कोई भी लेदर प्रोडक्ट है वो हमने मैन्युफैक्चर किया और उसका जितना भी केमिकल ट्रीटमेंट का वेस्ट था वो हमने वाटर में एज इट इज छोड़ दिया, तो होगा क्या कि जो वाटर लाइफ सर्वाइव कर रही है उनके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा.
दूसरी चीज़, अगर हमने कोई भी लैंड को में कोई भी ऐसा वेस्ट डिकम्पोज कर दिया या फिर उसमें हमने कोई भी वेस्ट ऐसे फेंक दिया, तो होगा क्या कि जो भी लैंड है उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा. Now, what are the causes of the pollution? As we have already studied several times in our life, that is the air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Now, what is air pollution? It is due to the smoke and chemicals emitted by the factory. If we talk about the big industries, they are emitting various dangerous and hazardous gases in the environment, which ultimately makes us a problematic situation for breathing. That means बहुत सारी diseases उससे हो रही है, जैसे asthmatic diseases हो रही है. वाटर पॉल्यूशन, जो भी केमिकल्स वगैरह डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं वाटर में, तो उससे क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सर्वाइव करना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. लैंड पॉल्यूशन, दैट इज जो भी हम टॉक्सिक वेस्टेज या फिर जो भी गार्बेज हम लैंड में डिकम्पोज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसकी जो फर्टिलिटी हो रही है वो अल्टीमेटली कम होती जा रही है. नॉइस पॉल्यूशन, तो क्या हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, जो भी मशीनरीज हम लोग रन कर रहे हैं, उससे जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे लोगों को क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. उनकी हियरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है. नाउ व्हाट इज द ओवरऑल नीड फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल? क्या जरूरत है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की? जैसे सिचुएशन चल रही है चलने देते हैं, लेकिन नहीं, इस चीज़ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, हर चीज़ का अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड पे उसको डिग्रेड कर देंगे तो हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा उसको आगे ठीक करना या आगे हमें सर्वाइव करना. तो रिडक्शन ऑफ द हेल्थ हैजर्ड्स, देयर इज एन इंक्रीज एविडेंस दैट many diseases like cancer, heart attacks and lungs complications are caused by the pollutants in the environment. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसे हो रही हैं जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो रही है. अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो अल्टीमेटली किसको हार्म हो रहा है, हमको एज अ ह्यूमन बींग, वो हमको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है. Reduced risk of liability, it is possible. Now, as we have discussed at the starting of this chapter, that if organization do not contribute towards the social responsibility, अगर आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और अल्टीमेटली आपको वो क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. तो आपके गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाती है कि आप खुद ही अपने हिसाब से ही मेजर्स लें ताकि गवर्नमेंट को आपके अगेंस्ट कोई एक्शंस ना लेने पड़े. Cost saving, an effective pollution control program is also needed to save the cost of the operating business. Now, if we are taking the measures towards the environmental protection, तो अब होगा क्या कि गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, तो जो पेनल्टीज आपके ऊपर लगने वाली थी वो नहीं लगेंगी, तो आपकी जो कॉस्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यह आपके प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा. Improved public image, a firm that adopts pollution control measures enjoys a good reputation. Now, if you are talking about or taking the steps for the social responsibility, it creates your goodwill in the market. अगर कोई भी ऐसा सोशल कंसर्न आता है और आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं, कंज्यूमर का क्या होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है आपके ऊपर, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो मार्केट में रेप्यूटेशन है वो क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. Other social benefits, that is pollution control results in many other benefits like clearer visibility, cleaner building and better quality of life. Now, if the environment is protected, we can easily survive in that environment. Now, what is the role of the business environmental protection? First is a definite commitment. As we know, all the decisions in the organizations are taken by the top management. So, the top management is ultimately responsible for making the plans towards the social responsibility. जब तक वो steps नहीं लेंगे, नीचे वाले जो middle level management है और lower level management है वो काम नहीं कर पा सकता. तो सबसे ज़्यादा काम किसका है, top management का, और top management को ही क्या करना पड़ेगा, initiatives लेने पड़ेंगे. Ensuring that commitment of environmental protection is shared throughout the enterprises at all the divisions, means all the departments of the organization should collectively work for the social responsibility. Developing clear-cut policies and programs for purchasing good qualities of raw materials, employing superior technologies, using scientific techniques. That means it is the responsibility of the organization of each and every department to work towards the social responsibility. Means there must be a minimum wastage of the resources, a good quality of resources must be used, a good technologies must be used so that the environment can be protected.
complying with the laws and regulations enacted by the government and it is the very important function of the organization to follow the rules and regulations as prescribed by the government, क्योंकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ के rules and regulations हमें follow करने पड़ेंगे. Participate in the government programs relating to the management of hazardous substances. Now as a business organization, I have to take measures to work collectively with the government for the development of the society, for overall protection of the society. Periodic assessment of pollution control programs in terms of cost and benefits so as to increase the progress. Now, अब देखिए होगा क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कहाँ से जा रहा है, हमारे प्रॉफिट के लिए पार्ट से हमें देना पड़ रहा है. तो अगर मान के चलिए कि हमने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अपना पार्ट किस में लगा दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और वो चीज़ बेनिफिशियल ही नहीं हो रही, तो ऐसा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या करना है, मेरे को जितनी कॉस्ट लग रही है और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट कितना आ रहा है सोसाइटी को, वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा. अगर वो चीज़ प्रॉफिटेबल हो रही है तो मैं आगे फर्दर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो आगे मेरे को और कुछ अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे उस चीज़ को सही करने के लिए. तो जो हमने स्टार्टिंग में सेक्शन 135 पढ़ा था, सेक्शन 135 ही प्रेस्क्राइब करता है शेड्यूल 7, मीन्स उसी के अंदर बताई गई हैं कुछ चीज़ें जिसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शंस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे अल्टीमेटली सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स मटीरियल फॉर शेयरिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस विद द सप्लायर्स. सो अब क्या काम है कि मेरे को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी एम्प्लॉयज़ को, ताकि हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैसे इनिशिएटिव्स लेने वो उनको पता लग पाए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली काम किसको करना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को. तो उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या इनिशिएटिव्स ले रही है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. नाउ here comes a very important topic, that is business ethics. Now what is business ethics? Business ethics is generally the rules and regulations which has been decided by the organizations for the overall contribution towards social responsibility. Ethics refers to the moral values that societies attaches to the actions of the human beings. Means ऐसे जो भी काम आप कर रहे हो उससे सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए. तो the initiatives you are taking towards the social responsibility is फॉर दी बेसिक बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट तो किया लेकिन अपने बेनिफिट के लिए किया. अपने बेनिफिट के लिए कैसे, मीन्स आप कंट्रीब्यूट तो बहुत छोटा अमाउंट कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को क्या दिखा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट सोसाइटी की तरफ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. तो ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नाउ it involves judging right or wrong human behavior on the basis of standard form of conduct of individual as approved by the society in particular field of activity. Now as a business organization we have to judge what is wrong and what is right. क्या करना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और क्या गलत हो सकता है. तो एज बिजनेस एथिक्स के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि मेरे को पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर ये एक्ट कर रहा हूँ तो फ्यूचर में जाकर उसका कोई बेनिफिट हो सकता है, क्या ये टास्क सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्या, और अगर नहीं तो मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो किसको पहुंच पाए, सोसाइटी को पहुंच पाए. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ we will discuss some internal questions from your chapter. Please open page number 141 of your NCERT book. Now the first question is, define the concept of social responsibility. It is on page number 141 itself. You can mark, the social responsibility of the business refers to an obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of obligations and values of our society. The second question is on the page number 143, that is arguments for the social responsibility. You can mark the points of arguments of the social responsibility. It is important. The third one is arguments against the social responsibility. And the last topic which is important in this particular chapter is the definition of the business ethics. Okay, so with this we are concluding this chapter. Thank you and have a nice day.